Hello everyone. This side Poonam Grover from St Andrews College of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I'm a faculty member in I'm a faculty member in Electronics and Telecommunication Department. Today I am start with my lecture number series 8, which are came under Unit 2. In my today lecture, I will cover the various topics, that is half adder, full adder, half subtractor, and full subtractor. And last topic that is very much important for you, that is a carry look ahead adder. It's clear. So I will start my topic with the here. What do you mean by adder? You can say binary adder and subtractor. A binary adder and subtractor is a combinational circuit that performs the arithmetic operation of addition and subtraction with binary numbers. So we will develop the circuit by means of hierarchical design. The half adder design is carried out first, from which we develop the full adder. Clear. So connecting the and full adder in cascade produces a binary adder for 2 n bit number. The subtraction circuit is included in complementing circuit. So what do you mean by half adder? From the verbal explanation of half adder, we find that the circuit needs two binary inputs and two binary outputs. Clear. So the input variable designate the augend and addend bits, and the output variable produces sum and carry. Okay, that is called your augend and addend bit, and which produce your two result in the form of binary, that is sum and carry. Clear. So the truth table show your half adder. Say if you're adding your two bit, that is called your half adder, that is 0 plus 0 is equal to sum 0 carry 0, 0 plus 1 result is 1 but carry is 0, 0 plus 1 plus 0 again result is 1 and carry is 0, and last one 1 plus 1 is equal to 0, carry किया जाएगा आपका 1 आ जाएगा. क्लियर. तो अब हम क्या करेंगे, इसने किस फॉर्म में लिखा हुआ है. लाइक पहले हमने लाइक हाफ एडर का मीनिंग एक्सप्लेन किया. हाफ एडर क्या करता है कि जो एक टाइम में दो बिट्स को ऐड करे, तो उन दो बिट्स को ऐड करने पर एक तो हमारा कैरी आता है और एक क्या आता है, आपका सम आता है. हमने उन दोनों बिट्स की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी आपको शो की हुई है. क्लियर. तो उस केस में आप देखेंगे कि आपका जो सम है, सॉरी, जो सम है और कैरी किस किस रिस्पेक्टिव बिट पे वन शो कर रहा है. ठीक है. तो सम जो है वो आपका दैट मिडल पार्ट. सो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू देखेंगे. ठीक है. लेकिन हम किस फॉर्म में काम करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में. क्लियर. तो जहां वन आ रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग बिट की वैल्यू क्या है, दैट इज 0. 0 को 1 बनाएंगे तो एक्स बार वाई. सो हेयर वी शोज एक्स बार वाई, दैट कोलन शो योर एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार. अगेन दैट इज एक्स और ये वाला वाई बार. इनकी जहां आपके सम की वैल्यू 1 शो हो रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग बिट को जो उठाएंगे और उसकी वैल्यू हम बुलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे. So that is called your x bar y and that is called your x y bar. Both are added with each other. So that will be show your sum of product forms. Clear. Again, you same case apply for your carry, but carry you can only single carry and contain at the last stage. So that's why the input is x and y. Clear. So here we getting the sum and carry. So sum is same as your you can say that expression value, you can say boolean expression value match with your XOR gate. So we are making the सर्किट विद द हेल्प ऑफ गेट्स. ठीक है. तो अब हाँ, अगर उसने सिंपल बोला है कि आपने जो सर्किट बनाना है वो किसी भी गेट के थ्रू बनाना है, तो अब सिंपल जो भी आपके इनपुट बोल रही है, आपके इनपुट क्या कह रही है कि आपका जो सम है, सॉरी, जो सम है वो क्या आ रहा है आपका एक्स वाई बार, और जो लाइक दूसरा वेरिएबल क्या आ रहा है सम में एक्स बार वाई. दोनों को ऐड करेंगे तो सम की फॉर्म में आउटपुट हो जाएगी. तो मैंने दो एंड गेट यूज किए अपनी फिगर में और एक और गेट. तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन निकलेगा दैट विल बी डिनोट द वैल्यू ऑफ योर सम, दैट इज कॉल्ड योर एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार हेयर. Clear. So again we can giving the carry, and the carry is the boolean expression is xy, so that's why x and y both are multiply with each other, and here we getting the result for your carry. Clear. Again you can also draw a circuit. You can also draw a circuit with the help of XOR gates, so that expression value will be matched as same as your XOR gate. So that's why we here we use one XOR gate and one AND gate. Clear. So XOR gate output will show your sum and the carry will be shown by your AND gate, and C is equal to X into
Y. So both of the design. So here we implement the half adder with the help of gates. If you may यानी कि देखो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमें यहाँ पे देखो इनपुट्स 1 2 3 4 5 6 इनपुट्स यूज करनी पड़ी, लेकिन अगर मैं इन्हीं को एक एक्सोर गेट के थ्रू काम करवाया तो मुझे सिंपली 2 इनपुट यूज करने के लिए इसने इनपुट को यहीं से बोरो कर लिया। क्लियर? उसकी फॉर्म में रिजल्ट क्या आया समझ के, तो यहाँ पे इनपुट वेरिएबल क्या हुए आपके ज्यादा हुए, तो कनेक्शन क्या हो जाएंगे आपके ज्यादा होंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जो कनेक्शन है वो कम से कम यूज करें। क्लियर? ठीक है, हम लाइक जो कनेक्शन है वो कम से कम यूज करें, तो ताकि उस कनेक्शन को कम करने के लिए हमें अपने बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके शॉर्ट फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आएगा उसको विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल गेट्स क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। और गेट्स की डिजाइनिंग में भी हम ऐसे गेट लेंगे जिसकी गेट को लगाने से आपकी नंबर ऑफ इनपुट बिट और आउटपुट बिट की रिक्वायरमेंट्स क्या हो, कम हो। वी कैन से टू डिक्रीज द impact of your fan in and fan out in case of your gates will be reducible. Clear? So here also we come with your full adder. So addition of n bit binary number requires the use of half adder, यानी कि अगर हमें 2 bit से ज्यादा ऐड कर रहे हैं 3 4 5, it means when in that case we can use full adder. Full adder is a combination circuit that forms the arithmetic sum of 3 bit. It consists of 3 input and 2 output. The two of input variable denoted by x and y, and the two significant bits to be added. The third input z represent the carry from the previous lower significant position. Two outputs are necessary because of the arithmetic. देखो अगर हमने चाहे यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर आपको 2 से ज्यादा बिट को ऐड करवाना हो तो फुल एडर यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे उसने वो जो बिट हैं वो 2 की बजाय 3 ली हुई हैं एक ही टाइम में। अगर वो 3 बिट लेता तब भी आपका रिजल्ट तो सम और कैरी की फॉर्म में आएगा ही आएगा। क्लियर? तो अगर आपको इसकी ट्रुथ टेबल से ज्यादा आइडिया हो जाएगा तो उसने क्या किया, एक्स वाई एंड जेड आपकी 3 इनपुट शो की है, तो आपका जो बिट है एडिशन का वो 2 से ज्यादा हो गया विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल z। ठीक है, आपने इन तीनों वेरिएबल्स की हेल्प से एक सम निकाला और एक क्या निकाला है, कैरी है। इट मीन हम बिट बाय बिट एडिशन करते जाएंगे और जो भी रिजल्ट आया वो सम और कैरी की प्लेस में यहाँ लिखते जाएंगे। तो देखो फर्स्ट में क्या हुआ, 0 + 0 0, रिजल्ट 0 आया। उस रिजल्ट 0 को आगे वाले z में जब ऐड करेंगे तो अगेन 0 आएगा। इट मीन आपका सम भी 0 और कैरी भी 0। नेक्स्ट स्टेज पे क्या हुआ, 0 + 0 0, 0 + 1 1, इससे आपका जो सम है वो तो 1 आया लेकिन कैरी क्या आया है, 0 आया है। अगेन 0 + 1 1 एंड 1 + 0 अगेन 1। क्लियर? तो इसमें आपका रिजल्ट तो 1 आया है लेकिन कैरी 0 आया। अगला वाले में जहाँ डबल टाइम 1 आएगा वहाँ आपका कैरी 1 आएगा और सम क्या हो जाएगा उस केस में 0 हो जाएगा। इसमें सिंगल 1 है तो आपका कैरी 0 होगा और सम क्या होगा, 1 होगा। इसमें डबल 1 है तो सेम, अगर डबल 1 है तो क्या होगा, 1 + 1 0, सम कैरी 0 आ गया और सम क्या आ गया आपका, 1 आ गया। क्लियर? अगेन 1 + 1 0, 0 + 0 0, 1 + 1 0 1 carry, here we write the 1 carry, and 0 + 1 1। clear? So here we apply the third, that is 1 + 1 0, 1 carry आ गया। अगेन 1 + 1 का रिजल्ट क्या आया, 0 आया। 0 + 1 1, इट मीन सम भी 1 और कैरी भी 1। तो इस तरह हमने जब हमारी बिट की एडिशन जो है वो 2 बिट से ज्यादा हो रही है तो हम हाफ एडर की बजाय क्या यूज करेंगे, फुल एडर यूज करेंगे। अब आप वही सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर द सम एंड फॉर कैरी। आप चेक करेंगे कि आपका सम कहाँ कहाँ 1 आ रहा है। क्लियर? तो सपोज करो ये वहाँ यहाँ 1 है सेकंड बिट पे, सेकंड बिट को 1 बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, x बार, y बार एंड z, क्योंकि z आपका ऑलरेडी 1 है। इट मीन जो 1 नहीं है उसको 1 बनाना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या आया, x y बार z, एंड सेम एज फॉर योर अदर एक्सप्रेशन, दैट इज थर्ड लास्ट वन योर 5 6 7। तो 5 को क्या लिखेंगे आप, x y बार, x y bar and z, again x y bar and z, again you can come with your last expression, that is x y and z bar. Clear? Here we write the x y and z bar, and same as for last, that is x y z, here we write the x y z. Clear? So that is the result of your sum, and same you can calculate the result for your carry. So carry will be 1 for x bar y bar z.
clear. And again the last one, and you can simplify that circuit with the help of boolean algebra. At last you can get into equation that is sum and carry. यानी कि अगर आपका एक्सप्रेशन बड़े फॉर्म में शोज हो रहा है तो इसमें कुछ चीजें टर्म्स कॉमन निकाल के और बुलियन लॉ की हेल्प से आप इन एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में ले आइए. शॉर्ट फॉर्म में लाने के बाद आप इसे गेट्स के थ्रू क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. क्लियर. तो मैंने अगर सपोज करो कि आपको लाइक शॉर्ट फॉर्म में करना डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपली आप क्या कीजिए, इसका के मैप डिजाइन कर लीजिए. तो देखो के मैप डिजाइनिंग जब हम करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहे हैं, जो कि 2 की पावर कितने में कवर होंगे, 3 में. 2 की पावर 2 में कवर नहीं होंगे क्योंकि वो कम रह जाएंगे, और 2 की पावर 4 में लाइक वो उसकी एक्स्ट्रा लिमिट हो जाएगी. क्लियर. तो 2 की पावर 3 में हमारे 8 तो पूरे आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसके लिए 3 वेरिएबल का के मैप यूज करेंगे. क्लियर. तो अगर हम 3 वेरिएबल का के मैप यूज करते हैं तो वही सेम चीज हमने एक तरफ आपके इनपुट वेरिएबल क्या है एज पर योर टेबल एक्स वाई एंड जेड, और आउटपुट क्या आ रही है, सम एंड कैरी. इट मींस हमने रिजल्ट सम और कैरी के लिए निकालना है, और आपके वेरिएबल क्या है, एक्स वाई एंड जेड. क्लियर. तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई एंड जेड लिखा है यहाँ पे. अब उसमें क्या किया हमने, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0. ठीक है. जहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं वहाँ पे हमने ये कोडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है. तो ये अगर आप एक्स जो है वो आपका एलएसबी टर्म है और वाई जेड आपका क्या है, एमएसबी टर्म है. तो जहाँ से एक्स स्टार्ट होता है वहां से आप नंबरिंग करना स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. So we can only write the coding language as per your K map. ठीक है. After you can give the number to particular block, you put the value as per your getting. तो सम की वैल्यू जो है वो आपकी कहाँ कहाँ बना रही है, चेक कीजिए. सम की वैल्यू आ रही है आपकी, ये 0 है, 1 2 पे 1 2 4 और लास्ट 7 पे. इट मीन 1 2 4 7 पे. तो देखो आपने अपनी फिगर के अंदर 1 2 4 7 को 1 रख रखा है. दैट इज 1 2 4 एंड 7. और ये इंडिविजुअल पेयर्स आ रहे हैं, किसी के साथ भी पेयरिंग कवर नहीं कर रहे हैं. तो इंडिविजुअल फॉर्म में इसका आंसर क्या आप लिखोगे, एक हॉरिजॉन्टल वे से और एक वर्टिकल वे से. तो इस वन के लिए आपका आंसर क्या आएगा, y बार z इंटू में x बार. क्लियर. ऐसे इसका आंसर क्या लिखोगे लास्ट वाले का, दैट इज y z बार इंटू में x बार. Clear. Here we write the answer for your that particular, that is x y bar z bar into में x. यानी कि एक वर्टिकल साइड से देखना है और एक उसका उसके कोरस्पोंडिंगली आपने हॉरिजॉन्टल साइड में लिखना है, और उस बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू आप 100 फॉर्म में लिखते जाएंगे. तो इसके लिए आप देखो, जब आप इस तरफ से देखोगे तो यहाँ पे yz आ गया क्योंकि वो ऑलरेडी 1 है. ठीक है. y बार z बार नहीं आया. ठीक है. तो क्योंकि वो ऑलरेडी 1 है, हमने 0 को 1 बनाना है क्योंकि हम 100 फॉर्म में काम कर रहे हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ इस 1 की वैल्यू क्या लिखी है, यहाँ से yz और यहाँ से x. तो एक्स वाई जेड आ गया, तो ये आपकी सम की वैल्यू आ गई. अभी सम की वैल्यू को वही सेम आप गेट्स लगा के सोल्व करेंगे. तो गेट में आपके 4 प्रोडक्ट टर्म आ रहे हैं, तो आपने 4 एंड गेट यूज किए और सभी को एंड करने के लिए एक और गेट. सो दैट इज अ लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर फुल एडर. एंड हियर वी आल्सो पुट द वैल्यू फॉर योर कैरी. तो देखिए कैरी आपका कहाँ का बना रहा है, कैरी आपका आ रहा है 0 1 2 3. 3 पे 1 आ रहा है, 4 5 6 7. इट मीन्स 1 5 6 7 पे आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. इट मीन्स वही सेम वैल्यू मैंने यहाँ पुट की 3 1 5 6 7 पे. तो जहाँ 1 आ रहा है हमने वैल्यू पुट की, उसकी पेयरिंग की. तो यहाँ ये 2 का पेयर बन रहा है, अगेन 2 का, अगेन लास्ट वन 2 का. इसे आप सोल्व कीजिए. तो अगर हम इस तरफ से देखें तो इस तरफ से आपका क्या आ रहा है, वाई जेड, और इस तरफ से एक्स बार प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों को कवर कर रहा है. क्योंकि अगर हम इस ब्लॉक को देखें, इस पेयर को देखें, तो ये पेयर आपका वर्टिकल में तो आपका आ रहा है वाई जेड, और हॉरिजॉन्टल में दोनों ब्लॉक ले रहा है. तो एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है, हमारा 1 आता है. तो आंसर में क्या आ जाएगा, ओनली वाई जेड. अगेन यू कैन राइट द आंसर फॉर दैट. तो इसमें देखो यहाँ पे तो क्या आया वाई जेड, और यहाँ पे क्या आया आपका वाई बार जेड. क्लियर. तो आपका यहाँ से वाई टर्म जो वन हो जाएगी, तो आंसर में ओनली जेड मिलेगा. तो जेड इंटू हम क्या कर देंगे, एक्स, दैट इज जेड एक्स. क्लियर. अगेन यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर दैट. अगेन यहाँ पे क्या वाई जेड और यहाँ पे क्या वाई जेड बार, तो जेड बार प्लस जेड 1 हो गया. आंसर में क्या आएगा, ओनली वाई. उस वाई को हम इस एक्स से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, वाई जेड. तो हमने यहाँ पे after simplification of your K map, you can getting the answer for your sum and carry. So that particular output for sum or carry in case of your full adder will be implemented with the help of your circuits. Clear. So here we write the circuits, that is x bar y bar z here,
अगेन एक्स वाई जेड बार हेयर, अगेन एक्स वाई बार जेड हेयर एंड लास्ट एक्स वाई जेड हेयर, सभी को उठा के इसमें दे देंगे और गेट में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सम। एंड सेम एज फॉर कैरी, कैरी में क्या आ रहा है, एक्स वाई एक्स जेड एंड वाई जेड, एक्स वाई एक्स जेड एंड वाई जेड, सभी को उठा के इसमें दे देंगे एक्सोर गेट में। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। क्लियर। तो हमने बड़े सिंपल तरीके से आपका जो रिजल्ट था वो हमने एनालिसिस में लेके आके उस पर बुलियंस ला लगाए और आपके सम और कैरी के एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में चेंज किया। जितना एक्सप्रेशन छोटा होगा उतने आपको वायरिंग कनेक्शन और गेट्स की रिक्वायरमेंट्स कम नीड होगी। क्लियर। सो हमने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो सम और कैरी का रिजल्ट बोल रहा है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया विद द हेल्प ऑफ योर गेट्स। ठीक है। Next we design the full adder with the help of two half adder. So here we use the circuit for your first half adder and that is your second half adder. क्योंकि जब हमने half adder का सर्किट बनाया तो आपने देखा फिगर में आपने एक XOR गेट यूज किया और एक AND गेट यूज किया। क्लियर। तो ये कनेक्शन यहाँ से मिसिंग है, एक्चुअली यहाँ से आएगा ये वाला कनेक्शन, इसकी आउटपुट जो है उससे कनेक्टेड होगी। ठीक है। फिर हमने क्या किया, दो लिए हैं और यहाँ पे टोटल आपका सम शो हो गया। और कैरी जो है, कैरी क्या किया उसने, यहाँ से इसके कैरी को इसके लास्ट वाले कैरी से क्या किया है, कंबाइन किया है। सो हमने इस वे से कंबाइन किया है कि आपको जो रिजल्ट लास्ट में आपका किससे मिल रहा है, 3 बिट बाइनरी फुल एडर के केस में मिल रहा है, वो रिजल्ट आपका इसी केस में एप्लीकेबल होगा। चाहे आप इसे 1 बाय 1, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स बाय आ रहा है और एक थर्ड बिट के साथ क्या हो रहा है, कन्वोल्व हो रहा है। तो आंसर में भी हमारा ये आ रहा है कि एक्स एक्सोरिंग विद योर वाई एंड सारे का एक्सोरिंग विद योर जेड, दैट इज आउटपुट फॉर योर सम। यू कैन चेक इट आउट once again here. क्लियर। ऐसे भी ये आ रहा है तो आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, तो उस वे में आपका ये वाला कनेक्शन अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट आपने कैरी लेके आना है, तो कैरी आपका आ रहा है, सॉरी कैरी क्या आ रहा है आपका, दैट इज एक्स वाई एक्स जेड एंड वाई जेड। सो हियर यू आल्सो गेटिंग द रिजल्ट फॉर योर एक्स वाई यहाँ से आ गया इनटू में ये वाला, इसको सोल्व करोगे तो आपका एक्सप्रेशन की आउटपुट क्या आ जाएगी, सेम एज फॉर यू कैन कैलकुलेट द कैरी आउटपुट, दैट इज एक्स वाई वाई एक्स एंड वाई जेड। क्लियर। अगेन यू कैन कम विद योर 4 बिट बाइनरी एडर। क्लियर। 4 बिट एडर, 4 बिट मतलब कि आपने 4 बिट जब ऐड करने हो तो आप कास्केडिंग कनेक्शन ऑफ क्या करेंगे, 3 फुल एडर का कास्केडिंग कनेक्शन यूज करेंगे। तो अब देखिए आपने फर्स्ट स्टेज आपने यहाँ पे फुल एडर लगाई हुई है। कई बार क्या होता है कि प्रीवियस स्टेज की कैरी हम एज्यूम नहीं करते एज ए थर्ड बिट, तो आप यहाँ पे हाफ एडर भी यूज कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस स्टेज की कैरी को ज्यूम नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आप कैरी प्रीवियस स्टेज की अजम्पशन में है तो जब तीनों कैरी प्लस योर बिट ऐड होंगे तब आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट की क्या बन जाएगा, कैरी, और यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपका, सम। वैसे भी पता है कि जब आप बिट बाय बिट एडिशन करते हैं तो जो कैरी होता है वो नेक्स्ट स्टेज पे क्या हो जाता है, आपका ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर। तो वही सेम चीज हमने इसमें यूज की हुई है कि हमने एक फुल एडर स्टार्टिंग में लिया है और यहाँ पे प्रीवियस स्टेज की कैरी की मांगा है, माना है C0, इसने रिजल्ट दिया हमें सम 0 एंड कैरी 1। तो जो हमने 2 बिट को ऐड करने पर कैरी है उसको नेक्स्ट स्टेज पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। एंड सेम एज फॉर योर अदर, so here we apply the bit by bit addition with the help of your 4 full adder which are cascading connected with each other. Clear. For let us write 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Clear. So that method is implemented when number of bit addition is large. So with the help of your that particular adder we can achieve this phenomena. Clear. So again you can come with your half subtractor with borrow out. आपने पहले हाफ एडर पढ़ा, फुल एडर पढ़ा। अब हाफ एडर में आप क्या किया, आपने 2 बिट्स ली थी, उसका सम एंड कैरी निकाला था। अब इसमें क्या है, फुल हाफ सबट्रैक्टर में हम 2 बिट लेंगे, उसका बोरो एंड डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो 2 बिट लिया आपने वाई और एक्स की फॉर्म में, उसको सोल्व करने पर आपको क्या मिला है, 0 - 0 0, जो कि डिफरेंस भी 0 आया और बोरो भी 0। अगेन 0 - 1 1। अब देखो जब छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं, 0 - 1 1, तो डिफरेंस 1 आएगा और बोरो भी 1 आनी चाहिए इस केस में। इसने यहाँ गलत लिख रखा है, क्योंकि 0 - 1 करने हैं तो डिफरेंस भी 1 और बोरो भी 1 आएगी, क्योंकि ये केस इसने यहाँ लिखना चाहिए था। जब वो डिपेंड करता है, सॉरी, अगर आपने x में से y माइनस किया और y में से x, तो ये x माइनस वाई कर रहा है। अगर वो x माइनस वाई कर रहा है तो देखो 0 - 0 0, डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0। नेक्स्ट केस में 1 - 0 किया तो डिफरेंस 1 और बोरो 1। नेक्स्ट केस में 0 - 1 किया, पहले x आएगा बाद में y आएगा, तो 0 - 1 किया तो आपको क्या हुआ यहाँ से,
एक बोरो भी जनरेट हुआ और रिजल्ट में भी क्या आया आपका डिफरेंस भी 1 आया। क्लियर। नेक्स्ट है आपका लास्ट केस 1 - 1 दो की डिफरेंस भी 0 और बोरो भी क्या आपकी 0 है। तो आपने क्या किया, इन बुलियन एक्सप्रेशन को जब लिखोगे तो आप जहां डिफरेंस और बोरो की वैल्यू 1 आई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बिट ऑफ x एंड y that will be converted into your boolean expression in the form of sum and your carry. Clear. So here we getting the checking the difference, here is 1, so that bit will be asked your y bar x plus xy bar, so that is a you can say same as your XOR gate. Again you can getting the result 1 बोरो केस में आपको क्या मिलेगा y x बार। तो y तो सिंपल यहीं से आ गया, x बार को हमने नोट गेट लगा के अप्लाई कर दिया, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा बोरो का y इंटू में x बार। क्लियर। so here we solve a simplification of your half subtractor with the help of your logic gates plus your बोरो। sorry again you can come with your full फुल सब्ट्रैक्टर में क्या होगा कि आप प्रीवियस चीज की बोरो लेके चलेंगे तो उससे आपके 3 बिट हो जाएंगे इनपुट पे x y एंड b इन स्टैंड फॉर योर प्रीवियस चीज बोरो, फिर उससे भी आपका डिफरेंस निकलेगा और बोरो निकलेगा। उसको अगर आपने कहीं नेक्स्ट स्टेज के साथ कास्केड करना है तो आप ऐसी स्टेज एक और साथ में इंप्लीमेंट और ऐड कर देंगे। क्लियर। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया है, आपने दो हाफ सब्ट्रैक्टर लिए, उनको जोड़ने के लिए लास्ट में और गेट लगाया है, तो यहाँ से आपका जो लास्ट थर्ड बिट है वो इसकी क्या बन जाएगी, बोरो बन जाएगी। और यहाँ से आपका जो रिजल्ट आएगा यहाँ से डिफरेंस निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा आपका, दैट इज बोरो। क्लियर। सो यू कैन डिजाइन आल्सो implement the full subtractor with the help of two half adder. So here we also show the result, that is first half adder, half subtractor, that is second half subtractor. Both are connected with your OR gate and give the final result in the form of full subtractor. So after simplification of your truth table, in case of your full subtractor, वही same 0 - 0 0, 0 - 0 0, difference भी 0, borrow भी 0. Again 1 - 0 1, result 1 आ गया, और 1 - 0 again 1. Clear. So that will be show your borrow. Clear. So here we apply the bit by bit operation to your b in stand for your borrow, y x is called your present bit. According to that 3-bit subtraction, we can getting the result in the form of difference and borrow. So here we write 0 - 1, sorry, starting from here x y and borrowing 0 - 1 1 borrow आ गई, then 1 - 0 1, result भी 1 आया और आपकी borrow भी 1 आई। नेक्स्ट केस में जब आपने किया तो 1 - 1 0 आया, तो इस केस में आपका रिजल्ट भी 0 और बोरो भी 0 है। तो इस तरह हम लास्ट केस तक बिट बाय बिट सब्ट्रैक्शन कर जाएंगे फ्रॉम x स्टैंड फॉर योर LSB एंड bn स्टैंड फॉर योर MSB. So that's why we are starting the subtraction from your x, y and z, and you can getting the result in the form of difference and borrow. After this you can simplify the particular expression for your difference and borrow, and after simplification मैंने यहाँ डिफरेंस की टेबल लिखी, उसे सोल्व किया, तो वो क्या बन रही है आपकी, लाइक इस फॉर्म में बन रही है। ऐसे ही फिर बोरो के लिए कैलकुलेट किया और बोरो के आउटपुट को लिख दिया। क्लियर। सो here we also show the binary subtractor with 2's complement. तो अगर सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's complement करनी हो तो एक ओगेंड होता है और एक एडेंड होता है। तो ये आपका 4 बिट का ओगेंड है और 4 बिट का एडेंड है। तो एडेंड का आपने ऐड में यानी कि 4 बिट एडर में लगी जो आपस में 4 बिट्स को ऐड करे, तो आपको यहाँ पे भी 4 बिट्स चाहिए, उन 4 बिट के आप इस फर्स्ट नंबर के साथ क्या करवाओगे, एडिशन परफॉर्म करवाओगे। लेकिन अगर या तो सीधा एडिशन परफॉर्म कर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो उससे क्या हो जाएगा आपका सॉरी, तो अगर आप सीधा लाइक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हो तो कई बार हमें 0 - 1 के केस में हमें बोरो रिजल्ट में कुछ इल्यूजन रहती है, तो उस इल्यूजन को दूर करने के लिए हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। सो बाय द यूज ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट तो हमारा एक ओगेंड होता है और एक एडेंड होता है। तो एडेंड को हमने पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया, उसमें +1 ऐड किया और उससे हमारा क्या आ जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब जो 2's कॉम्प्लीमेंट का जो सेकंड नंबर का रिजल्ट होगा उसको हम फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपका डिफरेंस आएगा और क्या आएगी आपकी
बोरो आ जाएगी। क्लियर। तो जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पे कोई बिट लिए मैंने 1101, दैट इज द फर्स्ट नंबर। अगेन 1101, दैट 1100, दैट इज द सेकंड नंबर। जो 1100 है उसका पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लीजिए, सारी बिट को रिवर्स कीजिए, उसकी लास्ट एमएसबी बिट पे 1 ऐड कीजिए। क्लियर। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके 4 डिफरेंस निकलेंगे और एक बोरो निकलेंगे। क्लियर। So that is a basic subtraction with the help of your 4-bit subtraction. Again, you can come the part of your carry propagation and carry generator. So carry propagation, what do you mean by carry propagation? जैसे मान लो सपोज करो कि हम ये मान के चलते हैं, जो मैंने फुल एडर का जो आपको एग्जांपल शेयर किया था यहाँ, दैट इज द सर्किट। देखिए सर्किट में अब उसने क्या है, कैरी प्रोपिगेशन क्या है। क्लियर। यानी कि जैसे इसमें देखो, अगर यहाँ से जो इनपुट है वो आपकी प्रीवियस स्टेज की कैरी है, उस प्रीवियस स्टेज की कैरी को आपने इनपुट के साथ ऐड किया, ऐड करने पर एक सम आया और कैरी आया, कैरी तो नेक्स्ट स्टेज पे ट्रांसफर हो गई और सम की आउटपुट यहाँ क्या होगी, आपकी शो हो गई है। तो अगर आप प्रीवियस स्टेज की कैरी नहीं एज्यूम करते तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, हाफ एडर। लेकिन अगर उसने प्रीवियस स्टेज की कैरी को एज्यूम कर रखा है तो आप क्या करेंगे, उस ए बी को प्रीवियस स्टेज की कैरी के साथ केस कंसिडरेशन में लाएंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे, उससे जो कैरी आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी नेक्स्ट स्टेज पे अप्लाई हो जाएगी। क्लियर। तो हमने यहाँ क्या किया है, सॉरी, तो प्रोपेगेशन क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जिस इंस्टेंट पे आपने इनपुट को अप्लाई किया उसी इंस्टेंट पे उसका रिजल्ट आ जाए। क्लियर। तो उस इंस्टेंट को लाइक सेटिस्फाई करने के लिए आपने ये जो डायग्राम मेंशन किया हुआ है मैंने, सॉरी, तो देखो इसमें क्या है कि जैसे सपोज करो कि हमने ये वाला फुल एडर उठाया, तो इसमें क्या है कि सम तक जब तक सम ने अपने आउटपुट को शो नहीं किया तब तक कैरी आगे आपका ट्रांसफर नहीं होगा। इट मींस you can came under with your sum delay, and after the delay will be added when the जैसे मान लो कैरी को, जैसे मान लो आपने सम अभी प्रेजेंट नहीं, सम की जो आउटपुट होगी उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट को कैरी को पुट करवाएंगे। क्लियर। सो हमने यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज किया है कि अगर जैसे मान लो इसके अंदर गेट्स लगे होते हैं हर एक लेक्सिफुल एडर के अंदर, तो उन गेट्स को भी कुछ टाइम लगी होता है प्रोसेसिंग के लिए, तो दैट टाइम विल बी कैलकुलेटेड एज एन डिले। अदर डिले क्या होता है कि जैसे आपने सम की आउटपुट को जब तक प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक आपको कैरी नहीं मिल जाता, क्योंकि कैरी को आपने नेक्स्ट स्टेज पे क्या करना है, अप्लाई करना है। क्लियर। सो दैट इज अ वन रीजन फॉर सेलेक्टिंग योर फुल एडर। तो उसके इसमें क्या होगा कि अगर मैं जो गेट्स लगाए हैं उनमें मल्टीपल कनेक्शन के कारण भी डिले आ सकता है। सेकंड पार्ट क्या है डिले का कि जैसे मान लो सम अपनी आउटपुट तब तक प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कैरी यहाँ पे तब तक शो नहीं होगा जब तक सम का फंक्शन हेल्ड नहीं होगा। ऐसे सेम कैरी यहाँ तब तक प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक सम का फंक्शन यहाँ हेल्ड होगा। तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर कैरी प्रोपेगेशन, और सॉरी कैरी डिले। तो उसके इसमें आपका डिले एंटर हो जाएगा। तो उस डिले को कम करने के लिए हम क्या टॉपिक स्टडी करेंगे, कैरी प्रोपेगेशन और कैरी लुक ए एडर। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब कुछ टर्म्स लेके चलेंगे इसके अंदर। आपने जो फुल सब्ट्रैक्टर का सर्किट यहाँ शो कर रखा है, सॉरी, दैट इज दैट विल बी केम अंडर विद योर लास्ट टॉपिक, दैट इज उसके अंदर आएगा ये वाला। तो उसमें आप 3 बिट एज्यूम करेंगे, उनको खोलेंगे, खोलने के बाद क्या करेंगे आप, मैं सिंपली यहाँ से कुछ रिजल्ट्स को अपनी एनालिसिस के अंदर अलग से यूज कर रही हूँ ताकि आपको ये नेक्स्ट टॉपिक समझने में दिक्कत ना आए, दैट इज कैरी लुक ए हेडर। चलो इस पार्ट को आप यहीं से स्टडी कीजिए।
एडर के पोर्शन में जब आपने एडर बनाया फुल एडर, तो उसकी ट्रुथ टेबल ध्यान से देखिए। अगर आप उसकी ट्रुथ टेबल ध्यान से देखेंगे तो आपको हर टॉपिक बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहीं पे भी आपने क्या किया था, सम और कैरी को निकालने के लिए दोनों की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट किया था। तो यहाँ पे हम सम को नेगलेक्ट कर देंगे, ओनली कैरी को कंसिडरेशन में लेके आएंगे और कैरी आउटपुट को ही हम चेक करेंगे, क्योंकि कैरी जो है वही आपका एक डिले ऐड कर रही है फॉर द नेक्स्ट स्टेज के अंदर। सो हमने उस डिले को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या किया कि यहाँ पे जो सम और कैरी की फॉर्म में उसने दो आउटपुट निकाली हैं। जी, अब इसमें आप लाइक लुक हेड कैरी हेडर में क्या हुआ कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि इसके अंदर लाइक जैसे मान लो आप इस हाफ फुल एडर को उठाते हैं, तो आपका जो सम है वो लाइक जब तक उसको प्रीवियस से कैरी नहीं मिल जाएगी वो आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करेगा, या फिर कैरी इसके आउटपुट पे डिस्प्ले तब तक नहीं होगी जब तक सम आपका आउटपुट पे नहीं आ जाता। तो कई बार क्या होता है कि सम कुछ डिले के बाद अकर होता है, सो दैट डिले विल बी अकर ड्यू टू द इंटरनल सर्किट एज पर योर लॉजिक गेट्स। जो आपने इसके अंदर लॉजिक गेट्स लगा रखे हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ डिले ऐड हो जाता है। क्लियर? तो उस डिले को मिनिमाइज करने के लिए हमने अपना सर्किट बनाया है, दैट इज कॉल्ड योर लुक ए हेड कैरी फॉर जनरेटिंग योर बिट एडवांस। क्लियर? सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम अपनी टेबल लिखेंगे फुल एडर की पहले, तो इससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे फुल एडर की टेबल लिखी हुई है यहाँ, सॉरी दैट इज, ठीक है। अब इस फुल एडर की टेबल से हम लुक के हेड कैरी एडर बनाएंगे। तो हमें मेनली जो फोकस करना है, क्योंकि जो कैरी है वो आपका बिट बाय बिट ट्रांसफर हो रहा है और कैरी क्या कर रहा है, आपका डिले काउंटेबल है। तो हम इसमें सम को इग्नोर कर देंगे। क्या बनाने के लिए, लुक हेड कैरी बनाने के लिए आप सम कंसिडरेशन में नहीं लेके आएंगे, ओनली कैरी लेके आएंगे। क्लियर? तो हमने ओनली कैरी बिट उठाए हैं। तो ध्यान से देखिए कि अब हम अगर लास्ट के दो सेक्शन देखें तो ये आपके दोनों बिट 1 है, तो आपके आउटपुट भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। उसका थर्ड बिट 0 हो 1 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके दोनों ए और बी 1 है तो आपके आउटपुट क्या आ रही है, कैरी में 1 आ रही है। सो दैट पार्ट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए इंटू में बी, यू कैन से एक्स इंटू में वाई। सो ये लास्ट वाली दो टर्म के लिए आप आउटपुट लिखेंगे एक्स इंटू वाई। क्लियर? क्लियर? उसके बाद क्या लिखा है आपने, अब नेक्स्ट देखिए, जब आपने ये चार केसेस लिए ये वाले, ठीक है, 0 0 से 1 1 वाले, तो उस केस में आपका 0 1 0 1 1 0 1 0 ये आपस में क्या कर रहे हैं, जोरिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन उस केस में हमें आउटपुट तभी 1 मिल रही है जब आपका सेड क्या है, 1 है, बाकी केस में क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। क्लियर? सो अगर हमें इसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका इन चार के लिए 1 2 3 4, 3 4 के लिए आप क्या लिखेंगे, एक्स एक्सोर विद वाई। क्लियर? आउटपुट किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी थर्ड बिट पे डिपेंड कर रही है। अगर थर्ड बिट 0 है तो आउटपुट 0 है, थर्ड बिट 1 है तो आपकी आउटपुट 1 है। हम इसको नहीं देखेंगे, ओनली कैरी को देखेंगे, कैरी की बिट कहाँ कहाँ बना रही है। क्लियर? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इन चार बिट का रिजल्ट निकालें तो ये पहले की दो बिट आपस में क्या करेंगी, जोरिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगी, एंड इनटू में क्या आएगा, थर्ड बिट जेड। क्लियर? तो आप इसे कैसे शो करेंगे, इसे लिखेंगे ए एक्स इंटू वाई, दैट इज कैरी जनरेटर, प्लस एक्स एक्सक्लूसिव विद y, दैट इज कैरी प्रोपेगेटर, इनटू में z। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? तो हमने क्या किया, अपने ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग कैरी की वैल्यू जहां जहां बना रही थी उन वैल्यूज को उठा के हमने फेच किया ओनली, और कुछ नहीं किया। हमने लास्ट वैल्यू को ओनली फेच किया। क्लियर? तो लास्ट बिट पे एक्स और इंटू वाई आ गया, जो कि क्या है, आपका कैरी जनरेटर है, और अगले वाले में एक्स एक्सोर वाई इंटू में जेड, जो कि क्या है, आपका कैरी प्रोपेगेटर है। क्लियर? तो वही सेम एनालिसिस आपने यहाँ पे लुक हेड कैरी एडर में यूज किया है फॉर मिनिमाइजिंग योर डिले। तो उसने क्या लिखा है यहाँ पे, आपका जो कैरी प्रोपेगेटर है वो आपका उसने सम की एसआई की फॉर्म में शो किया हुआ है, जो कि आपस में क्या कर रहा है, जोरिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? ठीक है। और अगर i+1 पे देखें तो आपका मैंने अभी बोला है कैरी जनरेटर होगा, जनरेटर को आप क्या बोल रहे हो, ए एक्स इंटू वाई। ठीक है। और प्रोपेगेटर क्या है, पी, यानी कि एक्स और वाई का एक्सक्लूसिव, इंटू में सी आई। सी आई स्टैंड फॉर योर यू कैन से थर्ड बिट।
क्लियर। तो हमने इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया है, हमने सिंपली जो आपको मैंने बताया है कि लास्ट की दो आउटपुट आपकी 1 थी, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि आपकी थर्ड बिट 1 हो 0 हो, उसने आउटपुट पे 1 प्रोड्यूस करना है। तो उस केस में जो लास्ट की दो इनपुट है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा आपका x इंटू वाई। क्लियर। दोबारा फिर दिखा देती हूँ। लास्ट की दो आउटपुट के लिए आपका रिजल्ट आएगा, लास्ट की दो आउटपुट के लिए रिजल्ट आएगा आपका x इंटू वाई, दैट इज कैरी जनरेटर प्लस, ठीक है, प्रोपेगेटर क्या है आपका x एक्सक्लूसिव y इंटू में z। क्लियर। तो आपने क्या किया, यहाँ पे भी वही सेम एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, दैट इज, तो ये कैरी जनरेटर जिसको x इंटू वाई बोलेंगे, कैरी प्रोपेगेटर को बोलेंगे एक्सक्लूसिव y इंटू में z, z यानी कि c आपको यहाँ z है, तो आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख लीजिए। एक्चुअली आपने इस इक्वेशन को यूज करना है। क्लियर। अब इस इक्वेशन में आप 1 बाय 1 पहले पुट कीजिए, जब i की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर में आ जाएगा आपका C01, इट मीन C1 प्लस में G0 इंटू में P0 C0। ऐसे फिर आप C2 निकालेंगे तो वहां से आपका आ जाएगा G1 P1 C1 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ आपने C1 की वैल्यू पहले निकाली है, वो क्या, ये G0 प्लस P0 इंटू में C0, तो वही वैल्यू उसने यहाँ इक्वेट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया। तो आपने एक चीज नोटिस किया है, जब आपने C2 को कैरी, C2 को आपका मेन मोटिव है कि कैरी जो है वो आपकी प्रीवियस स्टेज की नेक्स्ट स्टेज की कैरी को जनरेट करने के लिए प्रीवियस स्टेज की कैरी को का वेट ना करे, कुछ डिले ऐड ना हो, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, कैरी लुके हेडर। तो आप इसमें ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे आप C2 और C3 और C4 की वैल्यू निकालते जाएंगे, आपकी प्रीवियस कैरी C0 दैट विल बी ऑटोमेटिकली केम अंडर योर कंसिडरेशन। ठीक है, वो अपने आप ही कंसिडरेशन में आ रही है प्रीवियस की कैरी। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका क्या आ रहा था, डिले कम डिले आ रहा था, तो आपका वो वाला डिले क्या हो गया, काफी हद तक मिनिमाइज हो गया। क्लियर। ठीक है, अब हमने जो आउटपुट आ रही है आपकी, उसको हमने सिंपली गेट्स के थ्रू क्या किया है, डिजाइन किया है। सॉरी, तो उसने सर्किट इम्प्लीमेंट किया है, जैसे आप करना चाहें। बाकी आप इस कैरी लुक के हेडर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो आपका एक लाइक जो आपने लास्ट एक्सप्रेशन लिखा है, उस एक्सप्रेशन से आपका एक कैरी जनरेटर होगा और एक क्या होगा, कैरी कैरी प्रोपिगेटर होगा। ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली आपने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। तो फर्स्ट A3 B3 क्या करेगा आपका, तो ये मैंने चार हाफ एडर लगाए हुए हैं फॉर पर्टिकुलर बिट के एडिशन के लिए। उससे आपका एक लाइक सम जनरेट होगा और एक कैरी जनरेट होगी, वो मैंने बिट बाय बिट शो की हुई है। प्रीवियस इसकी कैरी मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। ऐसे ही सेम एज फॉर योर रिजल्ट, रिजल्ट में आपका क्या आ रहा है, जोरिंग फंक्शन आ रहा है, किसके लिए, P0 P1 P2 एंड P3 के लिए। क्लियर। और लास्ट की कैरी आपकी क्या हो रही है, आउटपुट पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, दैट इज अ सिंपलीफाइड ब्लॉक डायग्राम फॉर योर लुक हेड कैरी जनरेटर। मैं फिर ये दोबारा थोड़ा सा टॉपिक उठाती हूँ, यही वाला। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपने इस एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं अपने स्टैंडर्ड जो मैंने फुल एडर की आपको टेबल दिखाई उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करूं, तो इसका आंसर यही आने वाला है। तो सिंपली आपने उस आंसर में C0 C1 C2 सबकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो आपका प्रीवियस स्टेज की कैरी जो है ऑटोमेटिकली हर एक बिट के साथ ऐड हो रही है। तो उसको प्रीवियस स्टेज की कैरी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, उसकी एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी इस केस में, फास्ट हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड योर लुक अहेड कैरी एडर। So I will end my video here. So first I will review my video. Firstly, I explain your half adder, full adder, then half subtractor and full subtractor. In last, we can cover the topic of your looking at carry adder. So that is a very interesting topic as per your exam point of view and as per your you can say general MDU papers. So thank you for listening my lecture. Thank you very much.